Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of machine learning, we started our Unit 5. So Unit 5 is based on the distance and tool based model where we already discussed about what is mean by distance based model, what is mean by distance function, distance measurement, distance measures and what are the different types to calculate the distance between the two data points or a two data set. Okay, so the next point is the k nearest neighbor. Okay, that is KNN algorithm. Okay, so in this video we discuss about what is mean by k nearest neighbor, how this k nearest neighbor will work, and the algorithm for this k nearest neighbors with example, and the k nearest neighbor for regression and classification. Okay, so let us discuss one by one what is mean by k nearest neighbor first. Next is the example based on the KNN. So यहाँ पे देखो, in given table the weight value of ID 11 is missing. So we need to predict the weight of this person based on their height and age. So here in this table we have IDs 1 to 11, height, age and weight. So weight is what here target value. Okay, for a यहाँ पे वेट के 10 पीपल के लिए टारगेट वैल्यूज दी है, 11 के लिए हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, सो हियर द वेट ऑफ वैल्यू ID 11 इज मिसिंग, सो वी नीड टू प्रेडिक्ट द वेट ऑफ दिस पर्सन बेस्ड ऑन दिस हाइट एंड एज. ये जो पर्टिकुलर जो 11 नंबर का ID का जो पर्सन है उसकी हाइट और एज गिवन ही है हमारे पास, बस उसका वेट हमें प्रेडिक्ट करना है. ओके, सो यहाँ पे जो हाइट जिसकी हाइट 5 है उसका, जिसका एज 45 है उसका वेट ये होगा. सिमिलरली हाइट एज बेस्ड ऑन हमने क्या किया, इसके वेट फाइंड आउट किए हैं. सो सिमिलरली ये जो हमारे पास वैल्यूज है गिवन, उसके बेस्ड हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि जिसकी हाइट 5.5 है और जिसका एज 38 है उसका वेट क्या होगा. ओके, सो फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, we are plotting all the height and ages in this graph. Okay, so x axis के ऊपर है age in, then y axis के ऊपर है हमारे पास height. So in this above graph, the y axis represent the height of the person in feet and the x axis is represent age in years. So the point are numbered according to the ID वैल्यूज. ओके, जो भी ID वैल्यूज है ID 1 2 3 अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या किया है, उसको पॉइंट किया है. सो यहाँ पे देखो, जिसका हाइट 5 और एज 45 है, एज 45 यहाँ पे होगा और हाइट 5, सो यहाँ पे 1 मार्क किया है, देन 2, देन 3 4. ओके, सिमिलरली अप टू 11, 11 का कहाँ पे होगा, 5.5 और एज कितना है 38, 38 आएगा यहाँ पे और 5.5 बिटवीन 5 to 6. ओके, सो यहाँ पे है 11. सो यहाँ पे बस कलर किया है कि ये वाला दो सेम है, मीन्स एक ही क्लास में आ रहे आएंगे, वो एक ही सीक्वेंस में है ये सारे. ओके, और 11 यहाँ पे. सो हमें इसके लिए पता करना है कि वेट क्या होगा इसका. सो हाउ द KNN algorithm work here. So KNN algorithm is mostly used for the feature similarities, means जिसके similar features दिखेंगे वो उसके लिए KNN algorithm use किया जाता है to predict the value of a new data point. So new data points क्या है यहाँ पे 11. So here the new data points is assigned a value based on how closely it resembles the points in the training set. So from this example, we know that the ID 11 has a height and age similar to the 1 and 5. Okay.
सो यहाँ पे देखो ये जो जिसकी हाइट क्या है यहाँ पे 5 और इसकी कितनी है 5.6 और 11 की कितनी है 5.5। ओके, सो सिमिलरली 5 और 5.6 और 5.5 ये क्या है, थोड़े नियर दिख रहे हैं पॉइंट्स। ओके, सो इसके सिमिलर ही हमें क्या मिलेगा, उसका वेट मिलेगा। एक तो 77 है, देन 55। ओके, उसके बीच में ही कुछ 77 और 55 के बीच में हमें मिल सकता है ID11 का वेट। सो अप्रोक्सीमेटली हमने पता कर लिया। सो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये वाले केस में डिस्टेंस बिटवीन द न्यू पॉइंट्स एंड ईच ट्रेनिंग पॉइंट इज कैलकुलेटेड। हर एक ट्रेनिंग पॉइंट का और न्यू पॉइंट का हमें क्या करना है, ट्रेनिंग पॉइंट मीन्स व्हाट, ये 7, 9, 2, 8, 3, 10, 5, 1 ये ट्रेनिंग पॉइंट्स है हमारे। उसका और न्यू पॉइंट का डिस्टेंस हमें पता करना है बाय यूजिंग यूक्लिडियन और सम मैनहट्टन डिस्टेंस। मोस्टली यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज किया जाता है। ओके, so first step is to calculate the distance between the new points and each training point. So there are various methods: Euclidean, Manhattan distance, okay, and Hamming distance, also Minkowski distance also, okay. Then the second thing is closest k data points are selected, okay. जो भी हमने हर एक ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, उसके बाद हमें k की वैल्यू सेट करनी है। ओके, so the closest k data points are selected based on the distance. So in this example we are considering the k equal to 3, so points will be 1, 5 and 6. ओके, सो यहाँ पे जो भी हमें डिस्टेंस मिला है हर एक का, उसमें से मिनिमम वैल्यूज जो है वो कौन सी है, 3 मिनिमम वैल्यूज 1, 5 एंड 6। ओके, so here 1, 5, 6 will be selected if the k is equal to 3. So we further explore the method to select the right value of k. Okay, उसको हम k equal to 3, k equal to 5 से भी find out कर सकते हैं। Okay, so how to select the k factor here? Determine the neighbor of neighbors. We look at when we assign a value of any observations, any new observation. Okay, so here in this example 1, 5, 6 are the closest, that is 1, 5 and 6 means 1, 5 and 6 means ID1, ID5 and ID6. Okay, ID1, ID5 and ID6. So हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे the average of these data points is the final prediction for the new point. Okay, जैसे मैंने बोला था कि इसके नियर कौन से है 1, 5 और 6 भी है नियर 1, 5 एंड 6। सो 1 का कितना है वेट 77, 72 और 60। सो इनके बीच में ही हमें क्या मिलेगा, ID11 का वेट मिलेगा। ओके, सो दिस डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेबर्स वी लुक एट व्हेन वी असाइन अ वैल्यू ऑफ any new observation. So in this example the k is equal to 3, the closest points are ID1, ID5 and ID6. So height, उसकी height कितनी है हर एक ID की, उसका एज कितना है और वेट कितना है। The predictions of weight for ID11 will be उसका एवरेज डिवाइडेड बाय 3। सो हमें क्या मिलेगा ID11 का एवरेज 69.66। ओके, सो दिस इज ID11 weight. So here we notice that the based on the k value, the final result tends to the change. Okay, then how we can figure out the optimal value of k? k की वैल्यू मैंने 3 कंसिडर की, k की वैल्यू 5 कंसिडर कैसे हो सकता है, k की अगर वैल्यू 5 कंसिडर करते हैं तो उसके नियरेस्ट नेबर्स कौन से होंगे, हमें 5 मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने, मिनिमम डिस्टेंस पता करने हैं। सो उसमें से आईडीज क्या मिले हमें 1, 5, 6, 4 एंड 10। ओके, ये मिनिमम मिले। सो अगर हम उसका एवरेज करेंगे तो 65.2 मिलेगा हमें। ओके, सो हर टाइम उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। के की वैल्यू को जैसे हम यूज करेंगे उससे वैसे हमें क्या मिलेगा, प्रेडिक्शंस मिलेंगे। ओके, सो हियर
हर टाइम हमें k की वैल्यू चेंज मिलेगी, सो हमारा रिजल्ट भी फाइनल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पहले 69.66 था, यहाँ पे 65.2 है। देन हाउ वी कैन फिगर आउट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ k। ओके, सो based on the error calculation or error correction for our train and validation state, we can find out the result। ओके, उसमें से कितने एरर्स आएंगे, कितना वैलिडेशन से एरर होंगे। ओके, सो हैव अ look at this below graph for the training error and the validation error for the different value of k। okay, so for a very low value of k, जैसे मैंने बोला था k इक्वल टू 1 आता है, तो वो उसमें से सब नॉइसी डेटा वो कंसिडर करेगा। ओके, एक्यूरेट जो डेटा सेट है वो कंसिडर नहीं करेगा। ओके, सो अगर जितनी k की वैल्यू कम होगी उतना ओवरफिटिंग ज्यादा होगा, जितनी k की वैल्यू ज्यादा होगी उतना अंडरफिटिंग ज्यादा होगा। ओके, सो फॉर अ वेरी लो वैल्यू ऑफ k, for suppose k equal to 1, the model overfits on the training data, so which leads to the high error on the validation set। On the other hand, if you are considering the high value of a k, then the model performs poorly for the train data and the validation data also। Okay, so for that, if the value of k is higher, then we get to the underfitting। Okay, so if we observe closely, the validation error curve reaches to the minimum at the k value is equal to 9। so this value of k is the optimal value of the model। so this curve is known as the elbow curve। okay, यहाँ पे देखो k की वैल्यू है यहाँ पे 0 1 2 3, सो दिस इज अ ग्राफ। सो यहाँ पे 9 पोजीशन पे हमें ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी। ओके, ओके, सो हमें k की वैल्यू को कोई भी कुछ भी वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि k की वैल्यू अगर 3 है सो हमें ये वैल्यू मिलेगी, k की वैल्यू अगर 5 है सो हमें 65 मिलेगी, k की वैल्यू अगर 9 रखेंगे सो और भी हमारी एज जो वेट की वैल्यू कम होती जाएगी। सो हमें प्रॉपर k की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ओके, समटाइम्स आपको अगर रिटर्न में कुछ भी k नियरेस्ट नेबर का एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, सो ऑलरेडी वो गिवन देते हैं कि k की वैल्यू कितनी रखनी है। ओके, एमसीक्यू टाइप में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा KNN रिलेटेड k नियरेस्ट नेबर्स, तो उसमें आपको गिवन दे देंगे k की वैल्यू क्या होगी, 2 कंसिडर करो, 3 करो, 5 करो। ओके, वो गिवन होगी k की वैल्यू, जो वो गिवन k वैल्यू देंगे, बेस्ड ऑन दिस k वैल्यू आपको ये सॉल्व करना है। ओके, क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस, यस और नो? ओके, सो नेक्स्ट इज अ KNN फॉर रिग्रेशन। इसको हम रिग्रेशन से कैसे यूज कर सकते हैं रिग्रेशन के अंदर। सो हमें रिग्रेशन के अंदर कुछ इस तरह से पॉइंट्स होंगे, सो हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। उसका डिस्टेंस ये होगा 55, ये 50 होगा, 51 डिवाइडेड बाय 3 करके ये डेटा सेट 52 के अंदर है, सो हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये एक टेक्निक है इसके अंदर। So KNN employs a mean or average method for predicting the value of a new data. So based on the K, it would consider all the nearest neighbors. So the algorithm attempts to calculate the mean for all the nearest neighbors values until it has identified all the nearest neighbors within the certain range of a K value. सो हियर k इज इक्वल टू अगर 3 हम सेट करते हैं, सो ये जो न्यू डेटा पॉइंट्स है उसके नेबर्स हमने फाइंड आउट किए, देन उसका एवरेज सम करके उसका एवरेज निकाला, और फिर हमें पता चला कि ये इसका वैल्यू क्या होगी, 52 होगी। ओके, एंड क्लासिफिकेशन के अंदर कैसे होगा, KNN फॉर क्लासिफिकेशन। Okay, so when the problem statement is of classification time, the KNN tends to use the concept of majority voting. Majority जिसके अंदर ज़्यादा होगी within the given range of K value, the class with the most votes is a chooser.
So consider this diagram in which the circle is drawn within the radius of the 5 closest point. Okay, 1 2 3 4 and 5. यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है 5. So 4 of the 5 neighbors in the neighborhood voted for the red, and while one voted for the white. Only one is for the white and remaining 4 is for the red. So it will be classified as a red wine. Okay, based on the majority votes. Thank you.